مذہب کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں، وزیر اعظم عمران خان نے مسئلہ کشمیر، فلسطین اور اسلاموفوبیا پر مسلم ممالک کو جھنجھوڑ دیا۔ خطاب میں کہا کہ 1.5 ارب آبادی ہو کر بھی ہم مسئلہ کشمیر اور فلسطین پر ناکام ہوئے۔ مسلمانوں کو کسی بلاک میں تقسیم ہونے کے بجائے مل کر کام کرنا ہوگا۔ اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے فریم ورک تیار کیا جائے، پاکستان کا OIC سے مطالبہ۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بھارت میں ہندوتوا سوچ کے باعث مسلمان مشکلات کا شکار ہیں، افغانستان دنیا کی توجہ کا طالب ہے، فنڈز کا قیام اہم پیش رفت ہے۔ اسلام آباد میں OIC وزرائے خارجہ کونسل کا 48واں اجلاس، شرکاء کا اپنے خطاب میں مقبوضہ کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی، یمن سے متعلق اسرائیل کی پالیسی پر بھی اظہار تشویش، افغانستان میں انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے سعودی وزیر خارجہ کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی سمیت دو طرفہ دفاعی تعلقات پر تبادلہ خیال۔ سعودی وزیر خارجہ کے افغان صورتحال کے علاقائی استحکام میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ MQM کو ساتھ ملانے پر اپوزیشن شیر و شکر، فضل الرحمان کی خالد مقبول سے ملاقات، ایک دوسرے کا ساتھ دینے پر اتفاق، اتحادی حکومت کے ساتھ نہیں رہے، مولانا فضل الرحمان کا دعویٰ، کہتے ہیں تحریک عدم اعتماد کی کامیابی یقینی ہے۔ نساء کے کراچی طے ہونے کے قریب، بلدیاتی امور پر ڈیڈ لاک، سندھ حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کا قانون ساز نہ ہونے کا عندیہ، MQM کا سندھ اسمبلی سے ترمیمی مسودہ منظور کرانے پر زور، آصف علی زرداری کا خالد مقبول صدیقی سے ٹیلی فونک رابطہ، متحدہ قیادت کو براہ راست رابطہ رکھنے کی تلقین۔ 82واں یوم پاکستان کل شایان شان طریقے سے منایا جائے گا، پریڈ گراؤنڈ میں مسلح افواج کی فل ڈریس ریہرسل، تینوں مسلح افواج قانون نافذ کرنے والے اداروں کے دستے پریڈ کا حصہ ہوں گے۔ پریڈ میں جدید ترین J-10C لڑاکا طیارے پہلی بار فلائی پاسٹ کریں گے۔ اور لازوال دھنوں کے خالق نثار بزمی کی 15ویں برسی، نثار بزمی کی تخلیق کردہ لازوال دھنیں آج بھی سننے والوں کے کانوں میں رس گھولتی ہیں۔ نثار بزمی نے صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سمیت کئی ایوارڈز حاصل کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد احمد علی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ روس اور یوکرین تنازع حل کرنے میں OIC کردار ادا کرے۔ دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کو کسی بلاک میں تقسیم اور تنازعات میں الجھنے کے بجائے امن کے لیے اپنی طاقت ظاہر کرنی چاہیے۔ آپ کو بتائیں وزیر اعظم عمران خان نے اجلاس کی افتتاحی سیشن سے خطاب میں کہا کہ ریاست مدینہ کے اصولوں پر چلنے والا ملک ہی خوشحال ہوگا۔ 9/11 کے بعد اسلاموفوبیا میں اضافہ ہوا، تاہم دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ فلسطین اور کشمیر میں ہونے والے مظالم کو اجاگر کیا جائے۔ کشمیریوں کو 7 دہائیوں کے طویل عرصے سے حق خود ارادیت نہیں دیا جا رہا۔
ان کی بنیادی حقوق چھین لیے گئے۔ غاصبانہ قبضے کے باوجود اسلام دنیا خاموشی کا شکار ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ مسلسل ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، مگر کوئی نتیجہ خیز اقدام نہیں اٹھایا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک مسلم دنیا ایک مشترکہ موقف نہیں اپنائے گی، دنیا میں ہمیں کوئی اہمیت نہیں ملے گی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ طاقتور چوروں کو قانون کے کٹہرے میں نہ لانے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے۔ قانون سے کسی کو بالاتر نہیں ہونا چاہیے۔ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جہاں کمزور کو جیل میں ڈالا جاتا ہے اور طاقتور کو چھوٹ دی جاتی ہے۔ وزیراعظم عمران خان سے چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے دوران وزیر اعظم نے چینی طیارے حادثے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ آپ کو بتائیں ملاقات کے دوران عمران خان چینی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں پرکشش مواقع سے فائدہ اٹھانے کا خیر مقدم بھی کیا۔ وزیر اعظم نے وانگ یی کا پاکستان میں گرم جوشی سے خیر مقدم کیا۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے پاک چین دو طرفہ تعلقات کی رفتار اور بدلتے علاقائی بین الاقوامی منظرنامے پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے یوکرین کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا، پائیدار مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل کی ضرورت کا اعادہ کیا۔ عمران خان نے بھارت کی طرف سے پاکستان کی حدود میں میزائل نام نہاد حادثاتی میزائل کے بارے میں چینی وزیر خارجہ کو بھی آگاہ کیا اور پاکستان کی طرف سے مشترکہ تحقیقات کے مطالبے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا جائے کہ ایسا واقعہ دوبارہ نہ ہو۔ وزیر اعظم نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک کا دوسرا مرحلہ صنعتی ترقی، زراعت اور معلومات جیسے شعبوں میں بڑھتے ہوئے تعاون کے ساتھ اقتصادی ترقی کے لیے پاکستان کی کوششوں کو تقویت دے گا۔ اور ناظرین، یوم پاکستان شایان شان طریقے سے منانے کے لیے تیاریاں مکمل۔ 82واں یوم پاکستان شایان شان طریقے سے منایا جائے گا۔ تینوں مسلح افواج، سیکیورٹی اداروں کے دستوں کی ریہرسل جدید ترین J-10 جنگی طیاروں کا فلائی پاسٹ پریڈ کا حصہ ہوگا۔ پاکستان کی آزادی کی ڈائمنڈ جوبلی سال ہونے کی وجہ سے 82واں یوم پاکستان اور پریڈ منفرد و خاص ہے۔ تینوں مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے دستے پریڈ کا حصہ ہوں گے۔ پریڈ میں جدید ترین J-10C لڑاکا طیارے پہلی بار فلائی پاسٹ کریں گے۔ اس سال یوم پاکستان کا تھیم شاد رہے پاکستان ہے۔ آرمڈ کور، آرٹری، ایئر ڈیفنس انجینئرز کے دستے دشمن پر ہیبت طاری کرنے کے سامان حرب کا حصہ ساتھ پریڈ کا حصہ ہیں۔ میزائل، UAV پاکستان کے ناقابل تسخیر دفاع کی علامت کے طور پر پریڈ کا حصہ ہیں۔ SSG کے کمانڈوز فری فال کا مظاہرہ پیش کریں گے۔ چاروں صوبوں آزاد کشمیر، گلگت بلتستان کے ثقافتی فلوٹس میں تقریب کو چار چاند لگائیں گے۔ OIC کے وزراء خارجہ اجلاس کے شرکاء کو بھی یوم پاکستان پریڈ میں خصوصی طور پر مدعو کیا گیا۔ اس حوالے سے OIC کا فلوٹ خصوصی طور پر شامل ہے۔ OIC اجلاس کا 2 روزہ اجلاس اسلام آباد شروع ہو گیا، جس میں 48 ممالک کے وزراء شریک ہیں۔ آپ کو بتائیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اجلاس کی زیر صدارت اجلاس میں 15 سے زائد قراردادیں منظور کیے جانے کا امکان ہے، جو کشمیر، فلسطین، اسلاموفوبیا، امہ کے اتحاد سمیت مختلف مسائل و معاملات سے متعلق ہیں۔ سیکریٹری جنرل OIC حسین ابراہیم طاہا نے پاکستان کو OIC کے صدارت سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین سے متعلق اسرائیلی پالیسی پر شدید تشویش ہے۔ یمن کے مسئلے کا پرامن اور پائیدار حل ضروری ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود کا اجلاس سے خطاب میں کہنا تھا کہ جنرل اسمبلی میں اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد کا منظور ہونا مسلم امہ کی کامیابی ہے۔ اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ میں معاون ہوگا۔ انسانی بنیادوں پر ٹرسٹ فنڈ کے قیام ایک خوش آئند اقدام ہے۔ اس فنڈ کے ذریعے نقل مکانی کرنے والے افراد کی مدد کی جا سکے گی۔ مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے عالمی برادری کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ کانفرنس میں شرکت کرنے والے معزز مہمانان گرامی کل یوم پاکستان کے موقع پر ہونے والی مسلح افواج کی پریڈ میں خصوصی شرکت کریں گے۔
नाजरीन, चीनी वजीर खारजा ने कहा है कि दहशत गर्दी को किसी एक फिरके के साथ जोड़ने की मुखालिफत करते हैं। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर खारजा कौंसिल के इजलास के मेहमान खसूसी चीनी वजीर खारजा वांग यी के खिताब करते हुए कहा कि चीन अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामी दुनिया की हिमायत नहीं भूल सकता। फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए चीन की हिमायत हमेशा गैर मुतज़लज़ल रही। 54 मुस्लिम ममालिक ने एक सड़क एक रास्ता मंसूबा पर दस्तखत किए। चीन मुस्लिम दुनिया में 600 मंसूबों पर 400 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। तहजीबों के माबैन मुज़ाकरात और तसादुम से बचने के लिए आगे बढ़ना होगा। वांग यी ने कहा कि चीन इस्लामी दुनिया के साथ मरबूत ताउन के लिए तैयार है, इलाकाई सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। अफगानिस्तान में अमन, तरक्की और तामीर नो की हर मुमकिन मदद और ताउन के लिए साथ हैं। वांग यी का कहना था कि कश्मीर पर OIC ममालिक के मौक़िफ़ और फ़लस्तीन के दो तरफा रियासती हल की हिमायत करते हैं। आपको बता रहे हैं कि चीनी वजीर खारजा ने कहा है कि दहशत गर्दी को किसी फिरके के साथ जोड़ने की मुखालिफत करते हैं। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर खारजा कौंसिल के इजलास के मेहमान खसूसी चीनी वजीर खारजा वांग यी ने खिताब करते हुए कहा कि चीन अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामी दुनिया की हिमायत नहीं भूल सकता। फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए चीन की हिमायत हमेशा गैर मुतज़लज़ल रही है। मज़ीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया जाए। पाकिस्तान का OIC से मुतालिबा। पाकिस्तान में तमाम वज़ीर खारजा को खुशामदीद। OIC दुनिया भर में 2 बिलियन मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है। बतौर रुकन पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक के दरमियान रवादारी को फ़रोग देगा। आइए जानते हैं वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने OIC वज़ीर खारजा कौंसिल के 48वें इजलास से खिताब में मज़ीद क्या कहा। नाजरीन, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल समेत दो तरफा दिफाई ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक सऊदी वजीर खारजा ने अफगानिस्तान सूरत हाल और इलाकाई इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। ISPR का कहना है कि सऊदी वजीर खारजा ने पाकिस्तान के साथ सिफारती ताउन पर मजीद बेहतरी के अज़म का इआदा किया, जबकि OIC इजलास की मेज़बानी पर पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। ISPR के मुताबिक सऊदी वजीर खारजा से मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। आर्मी चीफ ने कहा कि OIC इजलास मुश्तरका विजन और हिकमत अमली के लिए एक तारीखी पेशरफ्त है, जिसमें अमन और इस्तेहकाम के लिए नए चैलेंजेस का हल तलाश किया जा सकेगा। बुलेटिन में आगे बढ़ें, आपको बताएं PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया है कि इत्तेहादी हुकूमत के साथ नहीं रहे। मौलाना फजलुर रहमान कराची में MQM पाकिस्तान के मरकज बहादुराबाद पहुंचे, जहां उन्होंने मुत्तहिदा की क़यादत से मुलाकात की। मौजूदा सियासी सूरत हाल और तहरीक अदम एतमाद पर गुफ्तगू की गई। उन्होंने MQM को अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत की दावत दी। MQM क़यादत से मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया है कि हुकूमत के इत्तेहादी अब उनके साथ नहीं रहे। इन्हें हमारे साथ होने का ऐलान करने में 1-2 दिन लग सकते हैं। MQM के साथ भरपूर हम आहंगी है और मुकम्मल मुतमईन होकर जा रहे हैं। अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी यकीनी
एम क्यू एम के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मुल्क की किसी भी सियासी जमात के दफातर बंद नहीं, लेकिन हमारे हैं। मौलाना हमारे पास आए हैं तो हमें उम्मीद है कि इनके तजर्बे से फ़ायदा उठाएं और मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए हम उनका और हमारा साथ देंगे। नाजरीन, अदम एतमाद की तहरीक से मुतालिक कराची की सियासत में बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और कन्वीनर एम क्यू एम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। आपको बताएं, ज़राए के मुताबिक साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने हुकूमती इत्तेहादी जमात के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी से इस्तफसार किया कि उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक पर क्या फैसला किया। आसिफ अली जरदारी ने खालिद मकबूल सिद्दीकी से कहा कि इस्लामाबाद आए, मुलाकात करते हैं, जो तय होगा इस पर अमल होगा। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी का कहना था कि मैं और बिलावल आपसे बराह रास्त राबते में रहेंगे और मामलात की खुद निगरानी करेंगे। एम क्यू एम सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने आसिफ अली जरदारी की दावत पर कहा कि वो कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त और सदारती रेफरेंस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। सदारती रेफरेंस में इत्तेहादी जमातों के अलावा दीगर सियासी जमातों को नोटिस जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामे में कहना है कि सुप्रीम कोर्ट बार और अपोजिशन जमातों ने स्पीकर की जानिबदारी का नुक्ता उठाया है। हुकूमत की इत्तेहादी जमातें फरीक बनना चाहें तो वकील के जरिए दरख्वास्त दे सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इजलास वक्त पर ना बुलाने पर स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा की गई, जबकि अदालत पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। बेहतर होगा पार्लियामेंट के मामलात पार्लियामेंट के अंदर हल किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि अटॉर्नी जनरल ने यकीन दिलाया पीटीआई रुकन समेत कई रुकन को वोट डालने से नहीं रोका जाएगा, जबकि रेड जोन से बाहर जलसे के लिए अटॉर्नी जनरल सियासी जमातों से मुशावरत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का मजीद कहना था कि केस जल्द निपटाने के लिए तमाम फरीकैन तहरीरी तौर पर मुआरजात जमा कराएं। सुप्रीम कोर्ट बार के जलसा रोकने की दरखास्त और सदारती रेफरेंस की समाअत 24 मार्च को होगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पायदार तरक्की के लिए $30 करोड़ की मंजूरी दे दी है। एशियाई तरक्याती बैंक के जारी करदा एलामिये के मुताबिक इस रकम से पाकिस्तान के कैपिटल मार्केट और निजी सरमायाकारी का फरोग मुमकिन होगा। ज़ैली प्रोग्राम 2020 में मंजूर शुदा पहली ज़ैली प्रोग्राम के तहत अमल में लाई गई। प्रोग्राम के तहत इदारा जाती और रेगुलेटरी इस्लाहात होंगी, कोऑर्डिनेटरी फीचर्स में बेहतरी और सरमायाकारी के लिए फरोग जैसे इकदाम होंगे। कैपिटल मार्केट्स के इर्तिकाम में ताउन के लिए पाकिस्तान अहम तरक्याती शराकतदार है। अब आपको बताएं कि पेशावर में पाक फजाइया का तरबियती तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसमें सवार दोनों पायलट शहीद हो गए। तर्जुमान पाक फजाइया के मुताबिक तरबियती तैयारा पेशावर के करीब गिरकर तबाह हुआ। तैयारा मामूल की तरबियती मिशन पर था। तर्जुमान का कहना है कि जमीन पर किसी जानियों माली नुकसान की इतला नहीं मिली। एयर हेडक्वार्टर्स के वाक़े की वजूहात जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दिया है। बुलेटिन में अब कुछ बात करें आलमी वबा कोरोना वायरस की, तो पाकिस्तान में कोरोना की शरह 1% से भी नीचे आ गई। एक रोज में 2 अमवात और 228 केसेस रिकॉर्ड किए गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वबा के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 30,333 हो गई, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 15,290 है। मुल्क में 15,22,419 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए। 14,74,796 सेहतयाब हो चुके हैं। इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 248 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.82% रिकॉर्ड की गई है।
नाजरीन, सऊदी वजारत हज उम्रा ने गैर वैक्सीन याफ्ता अफराद को उम्रा और मस्जिद उल हराम में नमाज अदा करने की इजाज़त दे दी है। वजारत हज उम्रा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर इस हवाले से पैगाम जारी किया। वजारत ने अपने बयान में कहा कि सिर्फ उन गैर वैक्सीन याफ्ता अफराद को उम्रा और ज़ियारत की इजाज़त होगी जो अब तक कोरोना वायरस का शिकार नहीं हुए। सऊदी वजारत हज उम्रा ने कहा कि मुल्क में कोरोना वबा की सूरत हाल मुस्तहकम है, जिसके बायस अब गैर वैक्सीन याफ्ता अफराद को उम्रा करने और मस्जिदुल हराम में नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दी गई है। वजारत हज उम्रा ने गैर वैक्सीन याफ्ता अफराद को सिर्फ इस शर्त पर इजाज़तनामा जारी किया है कि उसने कोरोना की शिकार किसी मरीज से मेल जोल ना किया हो। मुत्तहिदा अरब अमारात में फल्कियाती अमूर के अंजुमन के चेयरमैन इब्राहिम अर्जरवान ने कहा है कि इल्मे फलाक के हिसाब से रमज़ान का पहला रोज़ा 2 अप्रैल और ईद उल फितर 2 मई 2022 को होने का इम्कान है। इब्राहिम अर्जरवान ने इस मरतबा रमज़ान के 30 रोज़े होने की पेशगोई की है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में अमूमन रमज़ान और ईद उल फितर का चांद अरब ममालिक के साथ या एक दिन बाद नजर आता है। इब्राहिम अर्जरवान ने कहा कि इमारात में खुरफकान शहर में अफ्तार का वक्त अबूज़ैबी से 8 मिनट कबल होगा, जबकि अलगैफात में जो मुल्क के मगरिब बईद में वाक़ है इफ्तार का वक्त अबूज़ैबी से 12 मिनट बाद आएगा। फल्कियाती अमूर के अंजुमन के चेयरमैन ने बताया कि रोज़े की शुरुआत खुरफकान में 4:48 पर होगी, अबूधाबी में 4:56 और अलसई और अलगयूफ में 5:08 पर होगी। उरूज एंड निदा ब्यूटी पार्लर की 20वीं सालगिरह के मौके पर म्यूजिकल तकरीब का इनेकाद किया गया। मैडम मंशा ने सालगिरह का केक काटा और मंशा ब्यूटी आर्ट्स कॉलेज का इफ्तिताह किया। मजीद जानते हैं उमर जट की रिपोर्ट में। अरूज एंड निदा ब्यूटी पार्लर की 20वीं सालगिरह के मौका पर म्यूजिकल तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का इनेकाद सिंहपुरा लाहौर में किया गया, जिसमें नामवर ब्यूटिशियंस और मुख्तलिफ कॉस्मेटिक्स कंपनियों के ओनर्स ने शिरकत की। मैडम सादिया तैमूर, आसिफा, मैडम हुमैरा, अनायतुल्लाह गोंदल, अलियास रशीद, भट्टी असगर और दीगर अफराद ने शिरकत की। तकरीब के दौरान मैडम मिंशा ने 20वीं सालगिरह के मौका पर केक काटा और मिंशा ब्यूटी आर्ट कॉलेज का इफ्तिताह किया। इस मौका पर मैडम मिंशा का कहना था कि ब्यूटी आर्ट कॉलेज बनाने का मकसद, मैंने अपना 20 साल तजर्बे की बदौलत नई स्टूडेंट्स को ब्यूटिशियन के कोर्स सिखाकर इस काबिल बनाना चाहती हूं कि वो अपना रोजगार कमा सकें। मैं तकरीब में आने वाले तमाम मोजिज मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूं। तकरीब के इख्तिताम पर आने वाले मोजिज मेहमानों के लिए पुरतकल्लुफ खाने का भी इख्तिमाम किया गया। कैमरामैन आतिफ के साथ उमर जट, कोहिनूर। रिपोर्ट आपने जानी। अब आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की बंद रोड जहांगीर खान के डेरा पर आमद। अहले इलाका ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की आमद पर फूलों की पत्तियों से शानदार इस्तकबाल किया। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इस मौके पर खवातीन में नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड भी तकसीम किए। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दिल में आम आदमी का दर्द है। 27 मार्च को जलसे की कॉल देने वाले आज आकर यहां इमरान खान के सपाही देख लें। इमरान खान पाकिस्तान के दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर देखता है। कोरोना के दौरान दिहाड़ीदार तबके को खुद घर जाकर माली मुआवनत की। इस मौके पर जहांगीर खान, चौधरी अब्दुल गफूर, राना वसीम, मियां नदीम, अली आमिर और सैकड़ों मर्द व खवातीन मौजूद थे। नाजरीन, डॉक्टर यास्मीन राशिद के ज़ेर सदारत महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर में अहम इजलास हुआ। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने सेहत के तमाम तरक्याती मंसूबों के मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। इसी बारे में डिटेल्स जानेंगे। हमारे साथ नुमाइंदा डॉक्टर मोहम्मद अदनान मौजूद हैं। डॉक्टर अदनान, बताइएगा किन किन मंसूबों के बारे में बताया गया? जी बिल्कुल, सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने सेहत के तमाम तरक्याती मंसूबों को मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने यह अहकाम महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर में अहम इजलास की सदारत के दौरान जारी किया है। इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी साहिल सईद, स्पेशल सेक्रेटरी डॉक्टर फरक नवीद, डॉक्टर अख्तर रशीद, डॉक्टर नईम मजीद और दीगर अफसरान ने शिरकत की। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इजलास के दौरान मदर एंड चाइल्ड अस्पतालों की तमीर, 500 बिस्तरों पर मुश्तमिल DH खानेवाल की तमीर, रहीम यारका और लिबिया में
सेहत घरों की तामीर, बुनियादी मराकज सेहत की अपग्रेडेशन, DHQ और THQ अस्पतालों की रिवैम्पिंग, मौजूदा ट्रामा सेंटर्स की अपग्रेडेशन और नए ट्रामा सेंटर की तमीर जारी पेशरफ का जायजा लिया। डॉक्टर बहुत शुक्रिया अदनान, आप हमें आगाह कर रहे थे। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि सरगोदा में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर और चीफ ऑफिसर कॉरपोरेशन ने भी कार्रवाई में हिस्सा लिया। देखिए महमूद डोगर की रिपोर्ट। ADCG तला जुबैर, असिस्टेंट कमिश्नर मलक अजीम शौकत, CO कॉर्पोरेशन ने पुलिस सिविल डिफेंस अमले के हमराही में तजावुजात के शहर के इलाके गोल चौक से फैसल बाजार, ब्लॉक नंबर 12, मुस्लिम बाजार, मिल्लत बाजार, सब्जी मंडी, फातिमा जिन्ना रोड पर तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान 40 दुकानें सील करके 20 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और दर्जनों दुकानदारों को मजमूई तौर पर 5 लाख रुपए से जायद जुर्माना भी किया गया। गैर कानूनी पार्किंग पर 50 मोटरसाइकिल और 4 गाड़ियां थाने में बंद। ऑपरेशन के दौरान ब्लॉक नंबर 3 सराफा बाजार में ताजरों ने इसके खिलाफ शदीद एहतजाज भी किया। ताजरों का कहना था, हमें आई है बंद करवाने वास्ते दुकाना, उन्हें भी कोई नायाब ज्वेलर थे के करीब आके बदतमीजी हुई है, वापस हाथापाई हुई है, उसकी वजह तो सारी इंतजामिया आ गई है और वो मेजर साहब की दुकान बंद करा के उन्होंने नाल लेके इंतजामिया दुकानें बंद करवाने नहीं आई, इंतजामिया आई है नजायज तजावुजात उठाने के लिए। अच्छा, उसी में बदमज़गी बन गई। लेकिन आज उन्होंने किसी के साथ हमारे साथ रब्ता नहीं किया और बगैर इंफॉर्मेशन के वो आए और उन्होंने आके गुंडागर्दी यहाँ की है। ताजरों और अमले कॉरपोरेशन में हाथापाई भी हुई, जिस पर पुलिस ने मौके पर से 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। चीफ ऑफिसर खालिद दादगाड़ा का कहना था कि तजावुजात के खिलाफ ये ऑपरेशन बिला इम्तियाज जारी रहेगा। ताजरों को चाहिए कि वह खुद तजावुजात खत्म करके आवाम के लिए आसानी पैदा करे। कैमरामैन आबद के साथ आगे बढ़ें, आपको बताएं ओकारा यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में स्पेन की यूनिवर्सिटी के साथ मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए गए। फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज ने प्रोफेसर वाजिद की ज़ेर निगरानी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। कॉन्फ्रेंस में स्पेन की यूनिवर्सिटी के साथ तहकीक और तलबा के तबादले के हवाले से मुफाहमत की एक यादाश्त पर दस्तखत किए गए। प्रोफेसर ज़िक्रिया ने जूनियम एडिटिंग सेंटर के लिए 20 मिलियन के फंड का भी ऐलान किया। प्रोफेसर ज़िक्रिया ज़ाकिर का कहना था कि ओकारा यूनिवर्सिटी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज कौमी और बैनुल अक़वामी साइंसदान, मुहक्किकीन और असातिज़ा एक फोरम पर जमा हैं। प्रोफेसर बुशरा मिर्ज़ा बोली, हमें तलबा में तहकीक सलाहियतें पैदा करने पर अपने वसाइल और वक्त को सिर्फ करना चाहिए। हल्का NA 127 के मरकजी दफ्तर में लॉन्ग मार्च के हवाले से इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास की सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा MP ख्वाजा इमरान नज़ीर ने की। मजीद अहवाल अमजद जट की रिपोर्ट में। NA 127 के मरकजी दफ्तर सरैया जमील पार्क में लॉन्ग मार्च के हवाला से इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास की सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और जनरल सेक्रेटरी लाहौर MPA ख्वाजा इमरान नज़ीर ने की। इजलास का आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया। इजलास में लॉन्ग मार्च के हवाला से भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर मौजूद MPA बाऊ अख्तर अली, MPA चोरी शहबाज, MPA मैडम कमल लियाकत ने भी शिरकत की। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने कसीर तादाद में हिस्सा लिया। इस मौका पर ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि ये लॉन्ग मार्च गरीब आवाम का लॉन्ग मार्च है, महंगाई में पिछी हुई आवाम का लॉन्ग मार्च है। इनका मजीद ये भी कहना था कि इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब न्याजी गठजोड़ इख्तिताम पजीर होगा, जवाल पजीर होगा और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इंशाल्लाह एक दफा फिर पाकिस्तान के वजीर आजम होंगे। महकमा औकाफ मजहबी अमूर पंजाब के ज़ेरे तमाम दरबार हजरत मौज दयार बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया।
बेगम गवर्नर पंजाब परवीन सरवर, डायरेक्टर जनरल वाइल्ड सिटी कामरान लाशारी और सेक्रेटरी औकाफ व मजहबी अमूर चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ पंजाब जवाद अकरम ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उनके हमरा एडिशनल सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर अहमद आफनान, डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन औकाफ तजम्मुल अब्बास राना, डायरेक्टर स्टेट औकाफ आमिर अहमद खान मौजूद थे। डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स औकाफ हामिद मसूद, जोनल एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ गोहर मुस्तफ़ा, अफसरान औकाफ और अमले ने भी इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। पाकिस्तान में पहली मरतबा एक्सपो सेंटर लाहौर में 2 रोज़ा डेयरी एशिया एक्सपो का इनेकाद किया गया, जिसमें लाइव स्टॉक और डेयरी के शोबे से वाबस्ता तालीम व तहकीक के मैदान में खिदमत सर अंजाम देने वाले वेटनरी की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के साइंसदान और महकमा लाइव स्टॉक के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। आइए जानते हैं इस मौके पर CEO अंजुमन सलीम का क्या कहना था। आपको बताएं कि पाकिस्तान में पहली मरतबा एक्सपो सेंटर लाहौर में 2 रोज़ा डेयरी एशिया एक्सपो का इनेकाद किया गया, जिसमें लाइव स्टॉक और डेयरी के शोबे से वाबस्ता तालीम व तहकीक के मैदान में खिदमात सर अंजाम देने वाले वेटनरी की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के साइंसदान और महकमा लाइव स्टॉक के आला ओहदेदारान ने शिरकत की। आइए जानते हैं इस मौके पर CEO अंजुम सलीम ने क्या कहा। बिल्कुल सर, डेफिनेटली क्यों नहीं मिलेगी। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें फॉरेन कंपनीज़ के साथ आपको काम करने का मौका मिलता है। फिर उसके बाद आपकी जो लोकल कंपनीज़ हैं जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग रखती हैं, आपका उनसे बड़ा अच्छा इंटरेक्शन होता है और फार्मर को इसका बहुत अच्छा एज मिल सकता है और मिलता भी है। मुस्तकबिल में बताएं कि किसान को हम किस तरह एजुकेट कर सकते हैं इस हवाले से, अपनी मशीनरी के हवाले से भी, और जो आप यहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं वो आप उनको क्या राय देंगे कि वो किस तरह मुस्तकबिल में जो है अपने इस फील्ड को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। सर देखिए, हमारे पास बहुत से ऐसे जो हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे युवास है, फिर उसके जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं वो इसको करते हैं, इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं। फिर उसके बाद जो इस किस्म की एक्सपोज हैं, जो इस किस्म की इवेंट्स हैं, उससे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मिलती है फार्मर को इक्विपमेंट के बारे में। मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं वो अपनी कैटेगोरिकली वो बताते हैं कि जी हमारे पास किस किस्म का इक्विपमेंट है और आपकी क्या नीड होनी चाहिए। तो ये जब तक फार्मर के साथ चीज़ें शेयर नहीं होती हैं, वो एक्सचेंज नहीं होते हैं आइडियाज़। जैसे एक्सचेंज होते हैं आइडियाज़, वो अल्टीमेटली कंपनीज़ को भी फ़ायदा होता है। और वासा का अमला लाहौर का हुस्न तबाह करने में पेश बगैर NOC केनाल रोड से मुल्हिका ग्रीन बेल्ट खोद डाली। इस हवाले से मजीद डिटेल जानेंगे, हमारे साथ नुमाइंदा सलमान शाह मौजूद हैं। सलमान शाह, बताइएगा क्या मसला है। वासा का अमला ग्रीन बेल्ट की तबाही का सफा करने लगा। वासा मुसलमान जाहिद ने महकमा इल्हार अपने जरूरत से मुल्हिका ग्रीन बेल्ट को खोद डाला। PHA लाहौर ब्रांच केनाल के मुलाजिमीन जब मौके पर पहुंचे तो वासा मुसलमान डिवीजन के अपने की जानिब से उनके साथ बदतमीजी की गई। मौके पर मौजूद मुलाजिमीन वासा के मुलाजिमीन का कहना था कि हमने यहाँ पाइपलाइन बिछानी है और हमें किसी NOC की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ ग्रीन बेल्ट की गुसाई करके केनाल एक्ट की खिलाफवर्जी की गई। PHA मुलाजिमीन की जानिब से मज़ाहमत और वासा मुलाजिमीन की जानिब से खुदाई का अमल रोक दिया गया था। जी बहुत शुक्रिया सलमान शाह, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नाजरीन, मुल्तान में FIA साइबर क्राइम विंग की कार्रवाई, ऑनलाइन माली फ्रॉड में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। FIA हुकाम के मुताबिक मुलजिम जावेद को पाकपतन से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ऑनलाइन सरमायाकारी का झांसा देकर रकम बटोरता था। कार्रवाई में सब इंस्पेक्टर सईद अहमद, सब इंस्पेक्टर ताहिर महमूद और कांस्टेबल हुजूर बख्श शामिल हैं। इंचार्ज साइबर क्राइम विंग शुएब हारून कहते हैं कि ऑनलाइन माली फ्रॉड करने वाले अफराद के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। आपको मुल्तान से खबर दे रहे हैं, जहां FIA साइबर क्राइम विंग की कार्रवाई, ऑनलाइन माली फ्रॉड पर मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया।
FIA हुकाम के मुताबिक मुलजिम जावेद को पाकपतन से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ऑनलाइन सरमायाकारी का झांसा देकर रकम बटोरता था। कार्रवाई में सब इंस्पेक्टर सईद अहमद, सब इंस्पेक्टर ताहिर महमूद और कांस्टेबल हजूर बख्श शाम ने हिस्सा लिया। इंचार्ज साइबर क्राइम विंग शुएब हारून कहते हैं कि ऑनलाइन माली फ्रॉड करने वाले अफराद के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। रमजानुल मुबारक की आमद कैदियों के लिए मयारी सहरो अफ्तार के बंदोबस्त किया जाए। IG जेल खाना जात पंजाब मिर्जा शाहिद सलीम बेग ने तमाम जेलों के सुपरिटेंडेंट को इंतजामात के हवाले से मुरासला जारी कर दिया है। इसी हवाले से डिटेल्स जानेंगे। चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर हमारे साथ मौजूद हैं। जी वसीम साबिर, आगाह कीजिएगा, मुरासले में क्या कहा गया? देखिए, IG पंजाब जेल खाना जात पंजाब मिर्जा शाहिद सलीम बेग ने तमाम सुपरिटेंडेंट जेल को जो है वो रमजान मुबारक के इंतजाम के हवाले से मरासला जारी कर दिया है। मरासले में बड़ा वाज़ेह लिखा गया है कि हुकूमत पंजाब से मंजूर शुदा खाने के मेन्यू के मुताबिक शहरी और अफ्तारी में मयार और मकदार का खास ख्याल रखा जाएगा। इसी तरह से कैदियों को मामूल के खाने के साथ शहरी में एक उबला हुआ अंडा और पराठा, इसके साथ जो है अफ्तारी में फ्रूट, दूध और खजूरें इजाफी दी जाएंगी। जबकि IG पंजाब का कहना था कि तैयार शुदा खाना जेल अफसरान की जेर निगरानी में दिया जाएगा और सुपरिटेंडेंट जेल और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल रात के वक्त भी अंदरून जेल चक्कर का जो है वो मुआयना किया जाएगा। इसी तरह से जेल सिक्योरिटी के हवाले से किए गए इंतजाम को भी मजीद बेहतर बनाया जाएगा। हर बैरक में नमाज तरावी का इंतजाम भी किया जाएगा। जबकि रमजानुल मुबारक में मुलाकातों का सिलसिला सुबह 8 बजे से शुरू किया जाएगा और 2 बजे तक रहेगा। जबकि डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल मुलाकात शेड की निगरानी भी करेंगे। और IG पंजाब मिर्जा शाहिद सलीम बेग का कहना था कि तमाम कैदियों को इस माह मुबारक में स्पेशल खाने के साथ साथ इबादत के लिए भी जो है वो मौजूद माहौल फराहम किया जाएगा। जी IG जेल खाना जात पंजाब मिर्जा शाहिद सलीम बेग ने तमाम जेलों के सुपरिटेंडेंट को इंतजामात के हवाले से मुरासला जारी कर दिए हैं। वसीम साबिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन में अब कुछ बात करें खेलों की, तो आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलियाई व्हाइट बॉल स्क्वाड के खिलाड़ियों ने मेलबर्न में ट्रेनिंग शुरू कर दी। बेन डॉर ने व्हाइट बॉल स्क्वाड में शामिल हो गए। एरन फिंच ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम मुंतजिर हैं कि अब व्हाइट बॉल क्रिकेट सीरीज खेलें और वनडे क्रिकेट के लिए रिदम में आने की कोशिश कर रहे हैं। एरन फिंच ने कहना था कि 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए काम करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने कहा कि पाकिस्तान एक अच्छी टीम है, सीरीज में सख्त मुकाबला होगा क्योंकि खिलाड़ी बासलाहियत हैं, इन्हें खुद पर एतमाद है कि वो अच्छा कर सकते हैं। हमारे खिलाड़ी वनडे में भी अच्छा खेलेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि केन रिचर्डसन इंजरी के बायस दौरा पाकिस्तान से बाहर हो गए। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि केन रिचर्डसन की जगह व्हाइट बॉल स्क्वाड में बेन डॉर शिफ्स को भी शामिल कर लिया गया है। सीरीज के तीसरे और फैसला कुन टेस्ट मैच के दूसरे रोज ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान के खिलाफ 391 रन्स बनाकर आउट हो गई, जबकि कौमी टीम ने खेल के इख्तिताम तक 1 विकेट के नुकसान पर 90 रन स्कोर किए। आपको बताएं कि ओपनर इमामुल हक 11 रन बनाकर आउट हो गए। अजहर अली 30 और अब्दुल्ला शफीक 45 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम अपनी पहली इनिंग्स में 391 रन बनाकर पेविलियन लौट गई। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह ने 4-4, जबकि नुमान अली साजिद खान ने 1-1 विकेट अपने नाम की। इसके अलावा कैंगरूज ने 232 रन और 5 विकेटों के नुकसान से आज दूसरे रोज के खेल का आगाज किया। कैमरॉन ग्रीन और एलेक्स कैरे ने तवील शराकतदारी में बिला तरतीब 89 और 67 इनफरादी रन्स का इजाफा किया। इसके बाद कोई ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जमकर ना खेल सका। मिचेल शॉर्ट 13, नॉर्थ 11, 4, मिचेल 9 रन्स बनाकर पेविलियन लौट गए।
امریکی تاجر اور میئر کے سابق امیدوار ڈاکٹر ولی ولسن نے تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور عوام کی قوت خرید کے پیش نظر $10 لاکھ کا پیٹرول مفت دینے کا اعلان کیا ہے، جو پاکستانی روپوں میں 17 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ اس سے قبل بھی وہ شکاگو میں $10 لاکھ کا پیٹرول مفت بانٹ چکے ہیں، جس کے اعلان کے بعد مخصوص پیٹرول پمپس پر گاڑیوں کی طویل قطاریں دیکھی گئی تھیں۔ ولی نے بتایا کہ شہر کے 50 پیٹرول پمپس میں سے ہر پمپ $20,000 کا پیٹرول مفت دے گا، جس کی رقم پہلے ہی دی جا چکی ہے۔ تمام مسائل اور بد نظامی کے باوجود لوگوں کی بڑی اکثریت کے ویلسن کا شکریہ ادا کیا ہے۔ امریکہ میں ہے ایک ایسی انوکھی لائبریری جس کی کتابیں پڑھنا منع ہے۔ امریکی جزیرے پر چھوٹی سی لائبریری میں صرف وہی کتابیں رکھی جاتی ہیں جنہیں ناپسندیدہ اور ممنوع قرار دیا جا چکا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اس کا نام میٹی نیکس آئی لینڈ لائبریری ہے، جو پورٹ ناکس مین میں 35 کلومیٹر دور سمندر میں میٹی نیکس نامی ایک جزیرے پر واقع ہے۔ یہ چھوٹی سی لائبریری 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے اور اس کا مقصد صرف وہی کتابیں جمع کرنا ہے جو امریکہ میں عارضی طور پر یا ہمیشہ کے لیے ممنوع قرار دی جا چکی ہیں۔ ان کتابوں میں اینڈ ڈیوگو نیکسٹ 3 ٹو کل اے موکنگ برڈ، دی ہیڈسن اور دی گریپس اور ریت کے علاوہ بھی کئی کتابیں شامل ہیں۔ گلوکار علی ظفر نے اسلامی کانفرنس تعاون تنظیم کے اجلاس کے انعقاد کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ آئیں امن کے پیغام بن کر سب یکجا ہو جائیں اور پوری انسانیت کی بقا اور سلامتی کی دعا کریں۔ گلوکار کا اپنے ٹویٹر پیغام میں کہنا تھا کہ کسی بھی فنکار کے لیے اس سے بڑے اعزاز کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اس کی آواز ایسے مبارک دن اور مقصد کی آواز بنے۔ بے حد شکر ہے اللہ تعالیٰ کے نہایت ذات کا اور رحمان و کریم ذات اللہ کی ہے۔ ہم کعبہ بد سی و تغیر کے ولی ہے، ہم مصطفی 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 ہے، ہم مصطفی 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 ہے، مصطفی ہے۔ دین ہمارا دین مکمل، استعمار ہے باطل ارزل، خیر ہے جد و جہد مسلسل عند اللہ۔ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جہاں وزیر اعظم عمران خان کے مخالفین سامنے آ رہے ہیں تو وہیں ان کے حمایتی خوب ان کا ساتھ دیتے نظر آ رہے ہیں۔ معروف پاکستانی اداکار بلال قریشی وزیر اعظم عمران خان کی حمایت میں بول پڑے۔ بلال قریشی نے انسٹاگرام سٹوری پر اپوزیشن کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے پر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ میرے وزیر اعظم ایک ایماندار آدمی ہیں اور ان کا ساتھ دینے کے لیے یہی کافی ہے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ وہ جانتے ہیں کہ جو وعدے انہوں نے قوم سے کیے وہ انہیں پورا نہیں کر سکے، لیکن وہ اپنے وعدے پورے کرنے کے لیے بہت جدوجہد کر رہے ہیں۔ انسٹاگرام سٹوری پر لکھا ہوا پڑھا جا سکتا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں پہلے ایسی تحریک چلائی جا رہی ہے جس میں وزیر اعظم پر کوئی کرپشن کا الزام نہیں، لیکن تحریک چلانے والے سارے کرپٹ ہیں۔ اس سے قبل اداکار منیب بٹ بھی وزیر اعظم عمران خان کے عہدے سے نہ ہٹنے کا دعویٰ کر چکے ہیں۔ معروف موسیقار نثار بزمی کو دنیا سے رخصت ہوئے 15 برس بیت گئے، لیکن ان کی تخلیق کے کیے گئے گیت لازوال دھنیں آج بھی سننے والوں کے کانوں میں رس گھولتی ہیں۔ نثار بزمی 1924 میں بھارت میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے 66 پاکستانی اور 40 بھارتی فلموں کے لیے گانے ترتیب دیے جو بے حد مقبول ہوئے۔ لازوال دھنوں کے خالق نثار بزمی نے کریئر کا آغاز بھارتی فلم جمنا پار سے کیا جو 1946 میں ریلیز ہوئی۔ نثار بزمی نے نگار ایوارڈ اور صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سمیت کئی ایوارڈ حاصل کیے۔ ان کا انتقال 2007 میں کراچی میں ہوا۔ نثار بزمی ہم میں موجود نہیں، لیکن ان کی دھنیں آج بھی مداحوں کے کانوں میں رس گھولتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔